Welcome students in Subhash English School digital lecture. Today we are going to study about chapter 2 for class 9th in English. Behave. Lesson 2, the sound of music. This lesson is divided into two parts. First of all, we will do part 1. Alvin Glenn listened to sound without hearing it. स्टूडेंट्स, एल्विन ग्लिन एक लड़की है जो एक म्यूजिशियन है, लेकिन ये सुन नहीं पाती थी। तो ये उसके बावजूद भी म्यूजिक को प्ले कर लेती है। तो इसकी इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी के कारण इसका ये जो चैप्टर है इसमें इसके बारे में बताया गया है। नाउ rush hours crowded jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the variables of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music and London, and daunting enough for any teenagers fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was proudly deaf. ये जो इस लड़की की कहानी है एल्विन ग्लेन, ये एक समय की बात है कि ये भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर बड़ी मात्रा में जहाँ भीड़ होती है वहाँ पे धक्का मुक्की करके जगह बनाने की कोशिश कर रही है। और ये लगभग 17 साल की है, काफ़ी घबराई हुई है, लेकिन थोड़ी सी रोमांचित भी है, एक्साइटेड भी है। एक पतली सी लड़की जो आती हुई ट्रेन का कंपन महसूस करती है, यानी कि वो उसको एक म्यूजिक या साउंड के रूप में सुनती है। यह उसका प्रतिष्ठित रॉयल संगीत एकेडमी लंदन में प्रथम दिन था, इसका पहला दिन था ये। और स्कॉटलैंड फॉर्म से आई हुई एक लड़की है। यह बहुत घबरा देने वाला अनुभव था, परंतु इस महत्वाकांक्षी म्यूजिशियन को दूसरों की अपेक्षा एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। वह गंभीर रूप से बाधित थी, मीन्स डिसेबल्ड। Alvin Glenn's losses of hearing had been gradual. Her mother remembers noticed something was wrong when the 8 years old Alvin was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie, जो कि इनकी माता है. For quite a while, Alvin managed to control her growing deafness from friends and teachers, but by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for a deaf. Everything suddenly looked back, says Elvin. ये जो एल्विन ग्लेन की सुनने की जो क्षमता थी वो धीरे धीरे कम हो गई थी जब वो उसकी माँ ने महसूस किया कि इसके साथ कुछ गलत हो रहा है। जब वो 8 वर्ष की थी और वो जो है पियानो बजाने के लिए वो वेट कर रही थी, उन्होंने उसका नाम पुकारा, वह नहीं हिली, नहीं उसने किसी प्रकार का मुंह किया। मुझे अचानक महसूस हुआ कि उसने सुना कि इजाबेल ग्लेन कहती है, कुछ समय तक एल्विन अपने बड़े हुए बहरेपन को अपने दोस्तों और अध्यापकों से छुपा पाई। मतलब सभी को बाद में पता चला, परंतु जिस समय तक एल्विन 11 साल की हुई तो उसके अंक गिरने लगे। इट मीन्स उसको और सुनना कम हो गया। और उसकी जो प्रिंसिपल मैडम थी, उनने उसके माता पिता से उसे एक विशेषज्ञ के पास ले जाने की विनती की
तब यह पता चला कि उसे सुनने की क्षमता उसकी कम है, नाड़ी खराब होने के कारण गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। उन्हें सलाह दी गई कि उन्हें उसके लिए श्रवण सहायता यंत्र लगवा देना चाहिए। इट मीन्स कान में वो सुनने की मशीन। उसे बधिरों के विद्यालय में भेज देना चाहिए। अचानक सभी चीजें काली दिखने लगी, एल्विन ने ऐसा कहा। But Elvin was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. He begins by tuning two large drums and different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way, says Elvin. Suddenly I realized I could feel the higher drum and the west up and the lower one from the west down. Forbes pre- prepared, repeated the exercise, and soon Elvin discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sound and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. लेकिन एल्विन हार कहाँ मानने वाली थी। वह सामान्य जीवन जीने और अपनी संगीत की तरफ रुचि को बढ़ाने के लिए तत्पर थी। एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते देखा और निश्चय किया कि वह भी उसे बजाना चाहती है। ज्यादातर टीचर्स ने उसे हतोत्साहित किया, मतलब डिस्करेज किया, परंतु जो तबला वादक थे इनके रॉन फॉब्स ने उनकी क्षमता को पहचाना और उसने दो बड़े ड्रमों को अलग अलग धुनों में बजाना शुरू कर दिया। अपने कानों से मत सुनो, उन टीचर ने कहा, उन्हें किसी और प्रकार से महसूस करने का प्रयास करो। एल्विन ने कहा, अचानक मुझे लगा कि मैं एक बड़े ड्रम को कमर के ऊपर महसूस कर रही हूं और छोटे ड्रम को कमर के नीचे। फोर्ब्स ने अभ्यास दोबारा किया और जल्दी एल्विन समझ गई कि वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों से कुछ धुनों को महसूस कर सकती है। मैंने अपने मस्तिष्क और शरीर को आवाजों और धुनों के लिए खोलना सीख लिया था। ये कौन कह रही है? वो एल्विन। अब दृढ़ निश्चय और कठोर परिश्रम बाकी था। She never looked back from that point onward. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of highest marks in the history of the Academy. She gradually moved from orchestral work to solo performance. At the end of her 3-year course, she had captured most of the top award. उस समय उसने पीछे मुड़कर उसके बाद नहीं देखा। उसने यूनाइटेड किंगडम के एक यंग जो आर्टिस्ट होते हैं, म्यूजिशियंस, उनके समूह के साथ घूमना शुरू कर दिया जब वह 16 इयर्स की हुई और उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का फैसला कर लिया। उसने रॉयल संगीत एकेडमी के लिए ऑडिशन किया और एकेडमी के इतिहास में सबसे अधिक अंक पाए। वह धीरे धीरे समूह संगीत कार्यक्रमों में एकल संगीत की प्रस्तुति की ओर बढ़ी
अपने 3 वर्ष के पाठ्यक्रम के लास्ट में उसने कई शीर्ष इनामों को पा लिया था। मतलब 3 साल का उसने पूरा कोर्स किया और इस दौरान उसने कई सारे प्राइज अचीव किए थे। And for all this, Alvin won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where are you going, you will get there. And she got right to the top and world's most sought after multi-percussionist with a mystery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. और इन सभी के लिए एल्विन ने एक बड़ी मजबूती से अपनी उपलब्धि का कोई भी चिन्ह स्वीकार नहीं किया था। वो हर चीज को फेस करना चाहती थी, किसी की सिंपैथी नहीं लेना चाहती थी। अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं और जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आप वहां पहुंच जाएंगे। ये किसने कहा था? एल्विन ने कहा था। और वह विश्व की सबसे लोकप्रिय और विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र संगीतज्ञ, जिनकी लगभग 1000 जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनमें वो जो एक्सपर्ट थे, उनका अत्यंत व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम था, उसके ठीक शीर्ष पर पहुंच गई। इट इज intriguing to watch Alvin functions so effortlessly without hearing. In our 2-hour discussion, she never missed a word. Men with bushy beard give me trouble, she laughed. It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish little. My speech is clear because I could hear till I was 11, she says, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. एल्विन की जो सुनने की शक्ति में कमी थी, पर इतनी आसानी से वो कार्य करते देखकर लोग रोमांचित हो जाते थे कि वो किस प्रकार से म्यूजिक बजा लेती है इतनी डिसेबल होकर भी। हमारी 1-2 घंटे की चर्चा के बाद उसने एक भी शब्द को अनसुना नहीं किया था। लंबी दाढ़े वाले जो पुरुष थे उससे उनको परेशानी थी, लेकिन वो हंस देती थी। केवल होठों को नहीं देखना होता था, पूरे चेहरे को देखना होता था, खास तौर पर आंखों को। अब वह स्कॉटलैंड के लहजे में बिना रुके बोलती है, मेरी बोली स्पष्ट है क्योंकि मैं 11 वर्ष की उम्र तक सुन सकती थी। वह कहती है, परंतु यह एक बात की व्याख्या नहीं करता है कि किस प्रकार उसने फ्रेंच सीखी और किस प्रकार मूल जापानी भाषा में वो एक्सपर्ट हो गई। As for music, she explained, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones, and even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. By leaning against the drum, she can feel the resonance flowing into her body on a wooden platform. She removed her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. जहाँ तक संगीत का सवाल है, उन्होंने बताया कि वह मेरे शरीर के हर अंग में बहता है। यह मेरी त्वचा है, गालों की हड्डियों और यहाँ तक कि बालों की सनसनाहट से भी ये पैदा होता है। जब वह जाइलोफोन बजाती है तो उसकी ध्वनि को छड़ों से होकर अपनी उंगलियों के सिरों तक महसूस करती है। जब वह ढोल बजाने के लिए झुकती है तो उसकी गूंज उसके संपूर्ण शरीर में एक बहते हुए से महसूस करती है। एक लड़की के तख्ते पर
वह अपने जूते निकाल लकड़ी के तख्ते पर वह अपने जूते निकाल देती है ताकि वह संगीत की कंपन को नंगे पैरों से और टांगों पर ऊपर बहता हुआ महसूस कर पाए। नोट surprisingly, Alvin delighted her audience. In 1991, she was presented with a Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. Says master per- percussionist James Blades. God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expressed music so beautifully. इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एल्विन अपने दर्शकों को आनंदित करती है और 1991 में उसने रॉयल फिल हार्मोनिक सोसाइटी के विशिष्ट सोशलिस्ट ऑफ द ईयर के पुरस्कार उसको मिला। जो तबला वादक थे जेम्स ब्लेंड, वो कहते थे कि भगवान ने उसके सुनने की क्षमता तो छीन ली, लेकिन उसके बदले में उसे एक असाधारण चीज प्रदान की है। जो हम सुनते हैं वे उसे वो बहुत ही गहराई से महसूस करती है। इसी कारण वे संगीत को इतना खूबसूरती से पेश कर देती है। Alvin confesses that she is something of a workaholic. I have just got to work often harder than classical musicians, but the rewards are enormous. Apart from the regular concert, Alvin also gives free concerts in the prisons and hospitals. She also gives high priority to classes for young musicians, and Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they can't go. एल्विन ये स्वीकार करती है कि वह काम की धुनी है। वर्कहोलिक मतलब काम का पक्का, वर्क काम का धुनी। आई हैव जस्ट गॉट द वर्क। ज्यादातर वह शास्त्रीय संगीतज्ञों में भी कठोर मेहनत करती है, परंतु उसके इनाम बहुत सारे हैं। नियमित संगीत कार्यक्रमों के अलावा एल्विन जेलों और अस्पतालों में मुफ्त कार्यक्रम भी पेश करती थी। वह नौजवान संगीतकों के वर्ग को अधिक प्राथमिकता देती। एन रिचलिन, जो एक बधिर बालकों के बीथोवन फंड से संबंधित है, वो कहती है कि वह बधिर बालकों के लिए एक चमकती हुई प्रेरणा है और वह देखते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं जहां वह पहुंच नहीं सकते। Alvin Glenn has already accomplished more than most people twice her age. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped people who looked to her and says, if she can't do it, I can. And not the least, she has given enormous pursuit to millions. एल्विन ग्लेनी ने अपनी उम्र की 2 गुनी उम्र के व्यक्तियों से भी अधिक उपलब्धियां प्राप्त कर ली हैं। वह तालवादक को संगीत समूह के सामने लाई और उसने सिद्ध किया कि वह हृदय स्पर्शी हो सकता है। उन्होंने उन सभी को प्रेरणा दी जो विकलांग हैं, जो लोग उन्हें देखते हैं और कहते हैं अगर वह कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। और केवल यही नहीं, उन्होंने लाखों करोड़ों को बहुत ही खुशी प्रदान की है।
तो स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक है, ये यही एंड हो रहा है। और इसमें किस प्रकार से एल्विन जो है संगीत को महसूस करती है वो इसमें बताया गया है। और उस संगीत को महसूस करके, आत्मसात करके उसने अपनी हाईएस्ट पोजीशन को अचीव किया है। स्टूडेंट्स, आई होप you have understood very well. Okay, thank you.